Hello students, a very fresh and beautiful morning to all of you. How are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. In the previous class students, we completed chapter number 11, right? Articles from your grammar book, that is Collins English Grammar and Composition. I have already sent you the PDF and we have discussed all the exercises in the videos, right? And I hope that you have completed your work, right? आपने टेक्स्ट बुक में जितनी एक्सरसाइजेज है सारी एक्सरसाइजेज आपने कंप्लीट कर ली होगी आपकी टेक्स्ट बुक में, है ना? और अगर नहीं किया है देन प्लीज़ कंप्लीट इट, क्योंकि बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में करनी पड़ती है, राइट? सो इट्स बेटर टू कंप्लीट डेली लिटिल लिटिल, है ना? रोज़ थोड़ा थोड़ा करोगे तो एक साथ बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होगा, है ना? सो आई हैव ऑलरेडी सेंट यू द PDF फॉर आर्टिकल्स चैप्टर एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट्स वेल एंड गुड। और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कल लाइव क्लास में पूछ लेना, राइट? Now today we are going to start with another comprehension which is in your textbook, right? English grammar की textbook में है chapter number 27 page 110. कौन से वाले पेज पर है? पेज 110 पर है. So students please open your textbook, page 110, Jane and the Bears. Now your students, we are going to first read the story, right? मैंने आपको चैप्टर नंबर 26 करवाया था इससे पहले, जो था ब्रोकन पॉट, राइट? दैट इज़ ऑल्सो कॉम्प्रीहेंशन एंड समवॉट दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन आई वुड बी इंक्लूडिंग इन आवर नेक्स्ट एग्ज़ाम, ओके? ये वाला पैराग्राफ नहीं आएगा, ठीक है? ये पैराग्राफ नहीं आएगा, ठीक है? एक छोटा सा कोई भी पैराग्राफ आ सकता है और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्ज़ाम में, ठीक है? अभी हम लोग जो कर रहे हैं, राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू see this passage which is there in your textbook. In fact this is not a passage, it's a big story. So we are going to first read that story and understand it properly, and then we are going to move ahead with the exercise, okay? So let's read the story. Jane loved to read fairy tales. Her favorite story was the one in which naughty Goldilocks entered the three bears' house, ate their food and damaged their furniture. Jane liked to go into the woods and sit under an oak tree and imagine the bears talking to her. Now I would be explaining you each paragraph, right? वैसे आपको मैंने पहले जब पढ़ाया था सबसे पहला वाला कम्प्रीहेंशन, तब मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है जब भी आपको कम्प्रीहेंशन आता है, यू हैव टू फर्स्ट रीड द होल पैसेज, ओके? एक बार, फिर दूसरी बार वापस रीड करना है ताकि जो रफ़ आइडिया मिला आपको पहली बार पढ़ने के बाद, उसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं वो आपको पता चल जाए जब आप दूसरी बार रीड करते हो, उसके बाद ही एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? सो नाउ दिस स्टोरी इज़ क्वाइट लॉन्ग, so what I am going to do is I am going to read one para and I will be explaining you along with it, okay? So let's see. The first paragraph we read it. Here there is a girl named Jane, है ना? उसको फेरी टेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. She loved to read fairy tales. Tales means story, okay? Tales का मतलब होता है story. Her favorite story, सबसे favorite कौन सी है? The naughty Goldilocks. Goldilocks and the three bears. You might have heard that story, right? Goldilocks and the three bears वाली, जिसके अंदर वो सबसे छोटे वाले बेयर के बेड पर सो जाती है, उसके बोल में खाना खाती है ना? एंड शी सिट्स ऑन दैट स्मॉल बेबी बेयर चेयर एंड ब्रेक्स इट, राइट? सो आपने पढ़ा होगा ये गोल्डीलॉक्स वाला स्टोरी. इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी नाइस. अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना, ओके? सो वो उसकी सबसे फेवरेट स्टोरी है. नॉटी गोल्डीलॉक्स एंटर्ड द थ्री बेयर्स हाउस. And what did the Goldilocks do over there? She ate their food and damaged their
फर्नीचर, और फर्नीचर को डैमेज किया। मैंने आपको बताया ना अभी कि उसने चेयर तोड़ दी, उसका खाना खा लिया, है ना। Jane liked to go into the woods and sit under an oak tree and imagine the bears talking to her. So what she used to do, she liked to go to the woods. Woods का मतलब है forest और jungle, okay? Woods का मतलब होता है forest और jungle. So she used to go there and sit under an oak tree. oak tree के नीचे बैठती और वो imagine करती कि जो bears है वो उससे बातें कर रहे हैं. They are talking to her. One day she felt that the bears were real, and by searching in the woods she could find them. She set out, but soon it got dark. She tried to return home but could not find the way. She sat down under a big tree and burst into tears. Now what happened one day? She felt that the bears were real. मतलब अभी तक तो उसका imagination था, right? She used to go and sit under the oak tree and imagine कि bears उससे बातें करा. Imagine मतलब थिंक करना, नथिंग इज़ रियल, राइट। लेकिन एक दिन उसको ऐसा लगा कि ये जो बेयर्स है वो रियल है, और उसको वो ढूंढते ढूंढते अंदर चली गई जंगल में. शी वेंट इनसाइड द वुड्स बाय सर्चिंग देम. बेयर्स को देखते देखते, मतलब शी वॉज लुकिंग फॉर द बेयर्स, राइट, शी वॉज सर्चिंग बेयर्स, एंड वाइल सर्चिंग शी वेंट क्वाइट डीप इन टू द फॉरेस्ट. वुड्स के अंदर मतलब फॉरेस्ट के अंदर. एंड शी थॉट कि वो उसको ढूंढ लेगी. शी कुड फाइंड देम. उसको क्या लगा कि ये बेयर्स जो है वो रियल है और उसको मैं ढूंढूंगी तो मुझे मिल जाएंगे, राइट. सो शी डिसाइडेड टू गो इनसाइड. शी सेट आउट. सेट आउट मीन्स शी स्टार्टेड, है ना, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की. सेट आउट मीन्स शी स्टार्टेड हर जर्नी. बट सून इट गॉट डार्क. ऑब्वियसली दिन ख़त्म हो गया, अंधेरा हो गया. She tried to return home but couldn't find the way. Now while she was walking deep into the woods, right, when she was going inside the forest, she did not remember the way back. उसको वापस आने का रास्ता याद नहीं था, है ना. उसने सोचा कि अभी डार्क हो रहा है, so I should go back. उसने क्या सोचा कि अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, so I should just go back to home. लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाती है क्योंकि उसको रास्ता नहीं मालूम है. शी डिड नॉट फाइंड द वे. दैट मीन्स शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड द रूट, है ना. शी सैट डाउन अंडर अ बिग ट्री एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स. बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब क्या होता है? शी स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट. शी स्टार्टेड वीपिंग, है ना. शी स्टार्टेड वीपिंग. ओके, अभी अंधेरा हो गया. शी इज़ अलोन. ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन? शी इज़ गोइंग टू गेट स्केयर्ड, है ना. जंगल में अगर आप अकेले होंगे तो अब क्या होगा आपके साथ? डर ही जाओगे, है ना. और वापस अंधेरा हो गया है. सो शी स्टार्टेड क्राई. नाउ देयर व्हेन शी वॉज क्राइंग शी हर्ड अ नॉइज. व्हाट इज़ दैट? लिटिल गर्ल, व्हाई डू यू क्राई? अ बिग काइंड वॉइस सेड. अभी जब वो वहाँ पे बैठी थी तब उसको एक ज़ोर से एक आवाज़ सुनाई दी. काफ़ी अच्छी थी, काइंड और पोलाइट था जो भी बोल रहा था वो. क्या पूछा उससे? लिटिल गर्ल, व्हाई डू यू क्राई? क्यों रो रहे हो? व्हाई आर यू क्राइंग? जेन आंसर्ड, आई एम लॉस्ट. व्हाट डिड जेन आंसर? दैट शी इज़ लॉस्ट. वो अपना रास्ता खो चुकी है ना. शी वेंट इनसाइड एंड देन शी फॉरगॉट द रूट एंड दैट्स व्हाई शी इज़ लॉस्ट. लॉस्ट आस्क्ड द बिग वॉइस. जो बड़ा मतलब जो आवाज़ आ रहा था वो उसने क्या पूछा? लॉस्ट, वेयर वर यू गोइंग? कहाँ जा रहे थे तुम? वेयर वर यू गोइंग? सो जेन सेड टू फाइंड द 3 bears. टू फाइंड द 3 bears. कहाँ जा रही थी जेन? शी वॉज लुकिंग फॉर द bears फ्रॉम दैट गोल्डीलॉक्स स्टोरी, राइट. वाई? आई एम मिस्टर बेयर, व्हाट डू यू वांट विद अस? नाउ ये जो आवाज़ आ रही थी वो किसकी थी? मिस्टर बेयर की, मतलब जो सबसे बड़ा बेयर है उसकी आवाज़ थी. वो पूछ रही है, बेयर जो है वो पूछ रहा है कि क्यों ढूंढ रहे हो उसको? व्हाई आर यू लुकिंग फॉर द बेयर्स? आई एम मिस्टर बेयर, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए तुमको? व्हाट डू यू वांट विद अस? ओह, आर यू ट्रूली रियल बेयर्स? ना अभी तक जेन ने जो स्टोरी सुनी थी, राइट, गोल्डीलॉक्स की, वो तो इमेजिनेशन था, है ना. और उसी इमेजिनेशन के बेसिस पर उसको लगा कि ये रियल में भी होते होंगे, इसीलिए वो ढूंढते हुए वुड्स के अंदर चली गई और वहाँ पर उसको रियल वाला बेयर मिला, है ना. शी
was little bit surprised over here. Oh, if you see this word oh, उसका मतलब क्या होता है? Surprise. She is surprised. Oh, that means you are there. You are truly real bears, right? She is like that. Jane said, for she couldn't see in the darkness. अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उसको दिखाई नहीं दे रहे थे कि किसका आवाज़ आ रहा है. She was not able to see them first. Okay. Of course, roared Mr. Bear. What a rude question. Now bear को गुस्सा आ गया. What kind of question is that? How can you ask me कि मैं bear हूँ कि नहीं हूँ? Can't you see? I am such a huge animal. How can't you see? मेरे looks देखो, मैं bear ही तो हूँ. So Mr. Bear was little bit annoyed. उसको थोड़ा गुस्सा आ गया कि ये क्या है. Of course, roared Mr. Bear. What a rude question. Oh, I am so sorry. Jane replied fearfully. Please don't eat me. Now Jane जो है वो काफ़ी डर गई है ना. Fearfully का मतलब she is scared. अभी बेयर ने पहले स्टार्टिंग में तो काइंड वॉइस में बात की, बट फिर उसको ये सवाल पूछा जेन ने. ही वॉज एंग्री, ही वॉज रूड एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग लाउडली, स्टार्टेड रोडिंग, है ना. तो जेन जो है वो डर गई थी. शी वॉज फियरफुल. प्लीज़ डोंट ईट मी, प्लीज़ डोंट ईट मी. उसने क्या कहा? सी आई एम वेरी सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुमको हर्ट करने का, बट प्लीज़ डोंट ईट मी. मिस्टर बेयर फेल्ट सॉरी फॉर हर. दैट मीन्स शी फेल्ट पिटी फॉर हर, मतलब किसी के लिए दया आना, है ना. मिस्टर बेयर फेल्ट सॉरी फॉर हर. दैट मीन्स ही वॉज लिटिल बिट सॉरी, मतलब ही हैड पिटी ऑन दैट लिटिल गर्ल बिकॉज शी हैड लॉस्ट द वे, राइट. क्लाइंब ऑन माई बैक, आई विल टेक यू टू मिसेस बेयर एंड बेबी बेयर, ही सेड. मिस्टर बेयर ने क्या ऑफ़र किया? उसने कहा जेन को कि यू कैन जस्ट क्लाइंब ऑन माई बैक एंड वी विल गो टू मिसेस बेयर एंड बेबी बेयर. मतलब जो एक्चुअली में गोल्डीलॉक्स की स्टोरी में जो 3 लोग थे, राइट, पापा बेयर, ममा बेयर एंड बेबी बेयर, है ना. तो उसमें से मिस्टर बेयर से भी उसकी बात हो रही थी और उन्होंने क्या कहा कि ही विल टेक जेन टू मिसेस बेयर एंड बेबी बेयर, एंड शी एग्रीड एंड ऑफ दे वेंट. और जेन जो है उसने हाँ कहा. उसके पास और कोई ऑप्शन भी कहाँ था, है ना. और उसको तो वो एक्साइटमेंट थी सबको मिलने की. अभी तक तो वो सिर्फ इमेजिनेशन में बात कर रही थी. नाउ शी इज़ टॉकिंग इन रियल टू देम, राइट. सो शी वॉज स्केयर्ड ऑल्सो एंड समवेयर शी हैड दैट एक्साइटमेंट इन हर कि येस आई एम गोइंग टू टॉक विद द रिमेनिंग 2 bears ऑल्सो. सो शी एग्रीड एंड ऑफ दे वेंट. दैट मीन्स दे स्टार्टेड वॉकिंग अगेन, है ना. पहले उसने स्टार्ट किया था, सॉरी, very sorry, it's getting dirty. Started walking. Okay. In the forest, they came to the little house from the story with its 3 doors, 3 windows and 3 chimneys. They stopped in front of one of the door and outran the baby bear. When he saw Jane, he gave a little squeal and hurried back in. So जैसे ही Jane जो है she just climbed on the back of Mr. Bear and then they started moving. Now the house was quite inside the forest. That means deep in the forest, right? Inside. It was, they went quite inside the forest and then there comes a little house from the story. ये जो हाउस है आपको मालूम है, राइट. ये आपने अगर गोल्डीलॉक्स की स्टोरी पढ़ी होगी तो उसके अंदर ये हाउस दिखाता है. यू कैन सी ओवर हियर दैट इज़ अ हाउस विथ 3 doors, बिग, स्मॉल एंड वेरी स्मॉल. और वैसे ही 3 चिमनीज़ हैं यहाँ साइड पर, है ना. देर आर 3 चिमनीज़ एंड ऑल्सो देर आर 3 विंडोज. सी 1, 2 एंड 3, राइट. सो ये सबसे छोटा वाला जो डोर है वो बेबी बेयर के लिए, ये बड़ा वाला मम्मी बेयर के लिए और उससे बड़ा पापा बेयर के लिए, है ना. तो थोड़ा आगे जाने के बाद दे केम टू द हाउस जिसके अंदर 3 डोर, 3 विंडोज़ एंड 3 चिमनीज़ है. दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द डोर एंड आउट रैन द बेबी बेयर. और बाहर कौन आया? वो छोटा बेबी बेयर आया, है ना, बेबी बेयर. इट केम आउटसाइड द हाउस एंड व्हेन ही सॉ Jane, he gave a little squeal. Squeal means a short cry.
इट्स अ शॉर्ट क्राई, ठीक है. सो इट गेव अ शॉर्ट क्राई, राइट. इट्स स्क्वील्ड मीन्स इट माइट बी अफ्रेड, है ना. उसने जब जेन को देखा तो इट वॉज क्वाइट अफ्रेड, राइट. सो इट गॉट अफ्रेड एंड इट वेंट इनसाइड. हरीड बैक इन मीन्स इट वेंट इनसाइड द हाउस अगेन, राइट. वो वापस अंदर चला गया. ममा बेयर केम टू द डोर. Whom have you brought now? she said. मम्मा बेयर जो है वो चिल्ला के अंदर गया ना, तो मम्मा बेयर बाहर आई होगी फिर टू सी व्हाट हैज़ हैपेंड. सो शी केम आउटसाइड, केम टू द डोर एंड सेड, अब किसको लेकर आए हो? Whom have you brought now? she said. It's a little girl, said Mr. Bear. I found her in the woods looking for our house. So Mr. Bear ने आंसर किया कि it's a little girl, that is a small girl, Jane. एंड उसको कहाँ मिले वो? where did Mr. Bear find her? He found her in the woods, that means in the forest, while she was sitting under a big tree, right, and when she was crying, है ना, looking for our house. और उसने क्या बताया था जेन ने कि मैं वो मिस 3 बेयर को ही ढूंढ रही है, राइट. व्हाट डिड शी स्टे इन द स्टार्टिंग? जब उसको पूछा गया था कि वेयर आर यू गोइंग, तो उसने क्या कहा था? टू फाइंड द 3 बेयर्स, है ना. तो इसीलिए मिस्टर बेयर ने कहा कि वो हमें ही ढूंढ रही थी, हमारा ही घर ढूंढ रही थी, एंड दैट्स वाई आई ब्रॉट हर हियर. नाउ ममा बेयर वेलकम्ड जेन. ममा बेयर ने उसको वेलकम किया अंदर, प्लीज़ कम इनसाइड, ऐसा. एज जेन स्टेप्ड इन शी सॉ बिग चेयर दैट वाज टू हार्ड, medium one was too soft, and the little chair that Goldilocks had broken. And when she went inside the house, what did she see? She saw that there are 3 chairs. एक बड़ी वाली चेयर है, बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है बैठने पर, है ना. फिर एक मीडियम वाली है which is too soft, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है. and the little chair which was perfect, है ना, जो गोल्डीलॉक्स बैठने गई और टूट गई, है ना. इट वॉज मेंडेड विथ अ स्ट्रिंग. मेंडेड मीन्स फिक्सड, उसको फिक्स किया गया था. मेंडेड मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ को फिक्स करना, दैट इज़ कॉल्ड मेंडिंग. सो इट वॉज मेंडेड विथ अ स्ट्रिंग, मतलब किसी धागे से उसको टाई किया हुआ था. वो तोड़ दिया था ना उसका एक लेग, गोल्डीलॉक्स ने जब वो बैठने गई थी तब उसने तोड़ दिया था एक लेग, इसलिए. दे शोड हर द ग्रेट big bowl of very peppery soup, the medium-sized bowl of very salty soup, and baby bear's bowl mended with glue. So उन्होंने दिखाया उसको कि एक बहुत बड़ा सा बाउल है, राइट, जैसे कि उसमें था कि उन्होंने खाना रखा हुआ था, and the food was served in 3 bowls, right, a very big one, then a medium one, and then small one. So एक बड़ा सा बाउल था, उसके अंदर सूप डाला हुआ था, वेरी पेपरी. पेपरी मीन्स इट माइट बी वेरी स्पाइसी. पेपर जो होता है, ब्लैक पेपर, वो क्या करता है? खाने को तीखा बनाता है, राइट. इट मेक्स इट स्पाइसी, एंड सो इट वॉज वेरी पेपरी. द मीडियम साइज्ड बोल वॉज वेरी सॉल्टी, उसमें सॉल्ट ज़्यादा था, सॉल्टी सूप था उसके अंदर. एंड द बेबी बेयर्स बोल मेंडेड विथ ग्लू. अगेन वो बोल उसने ब्रेक कर दिया था, उसको मेंड किया हुआ था, दैट मीन्स इट वॉज फिक्स्ड यूजिंग ग्लू, राइट. ही लेट जेन टेस्ट ओनली अ लिटिल बिकॉज ही वॉज अफ्रेड शी वुड टेक इट. और ही लेट जेन टेस्ट ओनली अ लिटिल, मतलब 3 बोल्स थे, राइट. तो ऑब्वियसली जो पेपरी था वो भी नहीं लेगी वो, फिर जो सॉल्टी था वो भी नहीं लेगी, और जो तीसरा वाला बोल था जो बेबी बेयर का, उसने उसको ऑफ़र किया, लेकिन थोड़ा सा ही दिया क्योंकि उसको लगा कि शी इज़ गोइंग टू टेक इट अवे. बिकॉज एज़ यू नो कि हमने जो स्टोरी पहले सुनी है गोल्डीलॉक्स वाली, उसमें गोल्डीलॉक्स ने सारी बेबी बेयर वाली चीज़ें ही यूज़ की थी, है ना. वो दरवाज़ा जिससे एंटर हुई, दैट वाज आल्सो ऑफ बेबी बेयर. देन द बाउल, the chair and the bed, everything was of baby bear, and that was also a human being, है ना. गोल्डीलॉक्स जो थी वो भी एक ह्यूमन ही थी, इसीलिए जब उसने जेन को देखा तो उसे डर लग गया कि शायद जेन भी उसकी चीज़ें लेने ही आई हुई है, एंड दैट्स वाई द बेबी बेयर वॉज अफ्रेड ऑफ जेन.
Jane wanted to go home now, but Mr. Bear couldn't take her, for it was too far away and he did not know the way. Now after seeing all those things, right, जो उसने स्टोरी में देखा था वो सारी चीज़ें देखने के बाद उसको घर की याद आ रही थी, राइट. शी वॉज ऑल्सो लॉस्ट एंड शी वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर हर पेरेंट्स, राइट. तो उसको अभी घर जाना था. शी वॉन्टेड टू गो होम, बट मिस्टर बेयर जो है वो उसको लेकर नहीं जा सकते थे, बिकॉज ही डिड नॉट नो द वे. मतलब उसको रूट नहीं मालूम था. वो जहाँ से आई थी वहाँ तक वो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे का रास्ता मिस्टर बेयर को भी नहीं मालूम है ना. सो ही डिड नॉट नो कि उसका घर कहाँ पे है. सो मामा बेयर ने क्या कहा, वाई डोंट यू कॉल रेड राइडिंग हुड्स वुल्फ, मामा बेयर सेड. रेड राइडिंग हुड इज़ अगेन अनदर स्टोरी, राइट. एंड उसका जो वुल्फ है उसको बुलाने के लिए ममा बेयर कह रही है. ममा बेयर सेज दैट वाई डोंट यू कॉल रेड राइडिंग हुड्स वुल्फ, ही नोज़ द वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट. उसको फॉरेस्ट के बाहर जाने का रास्ता मालूम है. ही नोज़ द वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट. सो दे ऑल वेंट इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड वेटेड. A big grey wolf soon arrived. The wolf was delighted to help, but said he had to go first to the grandmother's cottage because he had a message to give to Red Riding Hood. Right? So वो लोग बाहर जाके राह देखने लगे. They all went outside, all the 3 bears along with Jane, and they waited over there. और एक वुल्फ आया वहाँ पे. अ वुल्फ अराइव्ड. अराइव्ड मीन्स केम ओवर देयर. अराइव्ड का मतलब क्या होता है, कम. सॉरी, दिस वन. सो अ बिग ग्रे वुल्फ सून अराइव्ड एंड द वुल्फ वॉज डिलाइटेड टू हेल्प, बट सेड he had to go first to the grandmother's cottage because he had a message to give Red Riding Hood. Right? उसने क्या कहा कि I would be very happy. Delighted means happy and glad to help. He might be very happy and glad to help, but पहले उसको ग्रैंडमदर के कॉटेज जाना होगा. कॉटेज मतलब इट्स अ हट, छोटा सा है ना, हट जो होता है ना वो. तो ग्रैंडमदर के हट पर जाना होगा क्योंकि उसको एक मैसेज देना है रेड राइडिंग हुड को, राइट. एंड देन ही वुड हेल्प जेन टू रीच होम. जेन क्लाइम्ड ऑफ द वुल्फ्स बैक एंड ऑफ दे वेंट. और फिर वहाँ से जेन उसके बैक पर चढ़ गई. शी सैट ऑन वुल्फ्स बैक एंड देन दे started. Off they went means they started moving, you can say. They started moving मतलब वो लोग वापस घर जाने के लिए रेडी हो गए. ठीक है. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो स्टोरी है पूरी, यू अंडरस्टूड द होल स्टोरी. नाउ इन एग्ज़ाम आई वोंट बी देयर टू एक्सप्लेन यू, बट एज दिस इज़ अ चैप्टर इन योर ग्रामर बुक एंड दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर प्रैक्टिस. ओके. ये जो सारे कम्प्रीहेंशंस है आपकी बुक के अंदर वो एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं. ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है क्योंकि आपको कॉम्प्रीहेंशन आएगा, अनसीन पैसेजेस आएंगे आपको मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट ईयर. एंड इनफैक्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस थिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एग्ज़ाम इटसेल्फ. हाँ, उसके लिए आपको छोटा सा पैराग्राफ आएगा, इतना बड़ा स्टोरी नहीं आने वाला है. एंड दिस आर फॉर ओनली practice. Okay, these all the comprehensions are only for practice. Okay, so we are done with the first one, that is 26, and this is 27. I have already made you understand the whole story, and we would be seeing the exercises related to it in next class. Okay students, thank you.